जय सच्चिदानंद। અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા પુણ્યશાળી, ભગવાનની ભૂમિકા આદેહી મેં નિહારી. ભગવાનની ભૂમિકા આરે મેં નિહારી. અમે કેવા ભાગ્યશાળી, અમે કેવા ભાગ્યશાળી, જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી પાડી. જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી પાડી. અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા પુણ્યશાળી, આગમ સ્વરૂપ થાઓ એ માર્ગ મુક્તિનો છે. આગમ સ્વરૂપ થાઓ એ માર્ગ મુક્તિનો છે. સત ક્રમશમાં આસ્વાદ શુદ્ધિનો છે. સત ક્રમશમાં આસ્વાદ શુદ્ધિનો છે. આસ્વાદ શુદ્ધિનો છે. આસ્વાદ શુદ્ધિનો છે. વાંદાની વચકાશ, વાંદાની વચકાશ, અજ્ઞાન માન્ય થાવું એને ધીરી ઉડાવી. અજ્ઞાન માન્યતા એને દીદી ઉડાવી. અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા ભાગ્યશાળી, અમે કેવા ભાગ્યશાળી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. No column, Shreya number 1, Chennai number 2. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનું કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનું કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવી સાદવાદ વાણી, સાદવાદ વર્તન અને સાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભે, ન દુભાય કે દુભવ પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભે એવી શાદવાદ વાણી, શાદવાદ વર્તન અને શાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, સાધુ, સાધ્વી કે આચાર્યનો અવણવાત, અપરાધ, અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ કિંચિત માત્ર પણ અભાવ, તિરસ્કાર ન કિયા જાય, ન કરવાયા જાય કે દાતા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા, તંટેલી ભાષા ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંટેલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુરૂચી ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ કિંચિત માત્ર પણ સ્ત્રી, પુરુષ, ગધા, પુચ્છ ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાસ સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ યા વિચાર સંબંધી દોષો ન કિયા જાય, ન કરાયા જાય કે દાતા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો.
મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્ત બળું ન કરાય એવી શક્તિ આપો. સમરસે ખોરાક લેવા એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ જીવન અથવા મૃત્યુ પામીનારો કોઈ પણ પાન કિંચિત માત્ર પણ અવનવાદ અપરાધ અવિવેક ના ગયા જાય ના કરવાયા જાય કે કરતા પ્રતિ ના અનુભવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો. શક્તિ આપો. શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. Jai Sachidanand. Okay. Vinay. શ્રીમંત Oh, sorry. Jai Sachidanand, Bihari Dada. Unmute करो. हाँ त्रिमंत्र बुलाए प्लीज. बुलाओ. हाँ बुलाओ. नमो वितरागाय. નમો વિતરાગાય. नमो अरिहंताणम. નમો અરિહંતાણમ. नमो सिद्धाणम. નમો સિદ્ધાંત. સિદ્ધાણમ. नमो आयरियाणम. નમો આયરિયાણ. नमो वज्जायाणम. નમો વસાયાણમ. नमो लोई सव्व साहुणम. નમો લોહે સવસાહુણમ. ऐसो पंचन मुक्कारो. એસો પંચનમ. सव्वपावपणासणो. સવ પાવકનાશનમ. मंगलाणं च सव्वेसिं. મંગલાણમ ચ સવેસિમ. परमं हवै मंगलम. પરમં વૈ મંગલ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ओम नमः शिवाय. ઓમ નમઃ શિવાય. जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. Hey, Chinay. जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने. मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी. मैं बुरी सोबत से और कुसम से हमेशा दूर रहूंगी. और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे ऐसी परम कृपा करना. प्राप्त मन वचन काया कार्य और अपने आत्मा का उपयोग केवल कर कार्य यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है. मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं. हे दादा भगवान मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ. मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी. कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें. जय सच्चिदानंद. Where? ये दक्ष. हे दादा भगवान मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आती हैं जो अंतराय आते हैं जो अपेक्षा आते हैं उन सभी को तोड़ने का संकल्प लेता हूँ. अब ऐसे ही प्रार्थना की डिस्टर्बेशन प्यार टूट जाए बड़े से क्या करूँ ये अच्छी दीजिए. वर्तमान वचन गाया करो और अपनी आत्मा को जैसे ही दादा भगवान मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं जो अंतराय आते हैं जो अपेक्षा आते हैं उन सभी को तोड़ने का संकल्प लेता हूँ. आप ऐसे ही हुआ करना कि जिस तरह रिलेशन टूट गया टूट गया और मैं बड़े स्टेट ऐसी मुझे शक्ति दीजिए. तो Charisma. जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान Hey, दादा Dada. भगवान हम मैं आपके बच्चे हम हैं आपके आपके बच्चे. बच्चे. दिल के हैं सच्चे
अच्छे, दिल दिल के के हैं हैं सच्चे। सच्चे, फिर भी फिर हैं भी कच्चे, फिर भी फिर भी हैं ये है है कच्चे। कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। Hey, जय Daryai, please remove that icon पीछे आता है और निकाल दो। Okay, Daksh. हाँ येषु other going up लघु दक्ष लगे येषु other going up permanent दक्ष temporary येषु other going up real दक्ष relative है Yeah. जय હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે જુદા છો શ્રેયા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો શ્રેયા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમનન્ટ છો શ્રેયા ટેમ્પરરી છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. जय सच्चिदानंद। कैसा रहा कितने दिन के बाद आने का सबको? छुट्टी में अच्छा लगा सबको? सत्संग मिस होते थे? दादा अच्छा नहीं लगता अच्छा नहीं हाँ, लगा? छुट्टियां तो सबको अच्छी नहीं लगती। कहीं पर भी छुट्टी मिले तो बहुत अच्छी लगती, मुझे तो बहुत आनंद आता है। आप लोगों को आनंद नहीं आता है? कंटाल आता था, सत्संग छूटता है ऐसा लगता था। वेरी गुड। चलो अभी कैसे अपना रिपोर्ट में तो बहुत अच्छा सब लिखता है, एक्सेप्ट सब किसी को घर में थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रिया, आपका घर में नो प्रॉब्लम? मम्मी को Problem. हेल्प करते हैं आप? हाँ मैं करती हूँ. द्राक्ष, आपको भी नो प्रॉब्लम? नहीं मैं मम्मी साक्षीबा को प्रॉब्लम? मैं मम्मी को हेल्प करती हूँ. नहीं, ऐसे वो सब नया सेक्शन है उसमें तो सब ए आते हैं। तोरल आपका भी है, दरिया तो नहीं लिखते रिपोर्ट, इट डजंट बिलीव इन रिपोर्ट राइटिंग। ओके चिनाई, करिश्मा आपका ओके, ब्रशिंग का कैसा चल रहा है? अच्छा चल 100% ए? खुशी, ये क्या बोलते हैं 100% है? वो 100% बोल रही है बट वो नहीं करती है। दादा वो मैं नहीं कर करती हूँ। पापा तो को बोलना पड़ता है रोज। ओके, पापा को बोलना कि दादा बोलते हैं कि ब्रशिंग में 100% आना मांगता है, पापा देखेंगे। ओके खुशी, आपका कैसा है? मेरा सत्साधन में और 30 मिनट्स खेलने में रह जाता है। नहीं सुनाई देता है। मेरा सत्साधन कभी कभी छूट जाता है और खेलने में छूट जाता है। एवरीडे कि कभी कभी? खेलने में एवरीडे। ओके मोनिका? मेरा सत्साधन रह जाता है और इस बार ब्रशिंग में मैं सिंसियर नहीं रह पाई और और एक्सरसाइज में भी आपका आधा घंटे ब्रेकफास्ट प्ले कुछ नहीं कर सकते आप लोग? 3 तो है साथ में। दादा रोप प्ले में रोप स्किप नहीं कर 2 सकते? खुशी, आप क्या प्ले करते हैं? मैं कुछ नहीं खेलती। दैट इज नॉट गुड। जो देखो, श्रेया तो जिम्नास्टिक करती है, ये दक्ष बाइसिकल करता है। दक्ष दादा भाई कभी आप हाँ दक्ष? दादा मैं कभी कभार ही करता हूँ पर मैंने आज खेला नहीं था क्योंकि आज कोई खेलने के लिए ही नहीं था बाहर. ओके दैट्स ओके, पर करते हैं ना कुछ। दक्ष भाई आप क्या करते हैं प्ले में? मैं खेलने में तो श्रेया के साथ खेलती हूँ, ऐसे पद चालू करके नहीं गरबा प्ले की खेलती हूँ बात, श्रेया के प्ले साथ. मीन्स डूइंग सम bodily exercise. This is not खेलती तो good. नहीं. I'm telling you, it is not good at all.
यू मस्ट डू समथिंग। कैसे 5 मिनट तो दीपक दादा ने कितनी दफा बोला, स्किपिंग रॉप तो करो ना। दादा बाइसाइक्लिंग हर रोज करती हूँ। क्या करते हैं? बाइसाइक्लिंग डेली। हाँ तो वो एक्सरसाइज में नहीं आती है। वो डेली एक्सरसाइज में आती है, बट सूर्य नमस्कार रह गया था इसलिए। बाइसिकल के बाद के वो पहले सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ओके, इसमें क्या है, देखो इंटेंट, हमने दो तीन दफा इंटेंट बोला है। तो आप कुछ नहीं कह पाते हैं ना, आपका इंटेंट नहीं है वो करने का वो दिन। सच्ची बात है कि नहीं बिहारी दादा? करने का इंटेंट नहीं होता है तभी नहीं होता है। हाँ see? तो डी आता है मीन्स यू हैव नो इंटेंट टू डू इट। देखो एक दो दफा वीक में नहीं, दो तीन दफा दैट्स फाइन, यू मिस समथिंग। खाने का कभी मिस नहीं होता है। व्हाई? नो, यू मस्ट हैव इंटेंट के यू मस्ट घर का सुबह से शाम तक घर का स्कूल का वो इंटेंशन मस्ट फिनिश। खुशी आपका क्या प्रॉब्लम है सत्साधन का नो इंटेंशन अच्छा होने का? कभी कभी रह जाती है कीर्तन भक्ति। कभी कभी इंटेंट नहीं होता है ना, टाइम नहीं होता है। इंटेंट नहीं होता करने का, नहीं। ओके, जो इंटेंट नहीं करता है तो आप सिंसियरिटी कैसे हो सकता है? ये दादा इन लोग को बताओ कि जो इंटेंट नहीं होता है तो किसी के बारे में सिंसियर नहीं हो सकता है ना बिहारी दादा। और ये जो सत्साधन है, कसरत है, वो अपने खुद के लिए है। सत्साधन है वो हमारी भीतर की शक्ति बढ़ाती है, हमारा मनोबल बढ़ता है, वचन बल बढ़ता है, तो भीतर से स्ट्रांग होते हैं सत्साधन करने से। और सभी देवी देवताओं को नमस्कार करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। और जो हम कसरत करते हैं वो कसरत से बाह्य और भीतर दोनों परिवर्तन होता है। तो 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा तो करने का है नहीं, तो वो जो बताया है जो दिखाया है वो करने का निश्चय रखने का है। निश्चय रखोगे तो हो जाएगा। टाइम तो है आपके पास कि टाइम नहीं है? अभी आपके पास टाइम नहीं है सत्साधन करने का और कसरत करने का? टाइम नहीं है क्या है? हाँ टाइम तो है, तो फिर नक्की करना वही हमारा पुरुषार्थ है ना। तो जैसे आप नक्की करोगे, तय करोगे और उसका महत्व समझ में आएगा तो अपने आप शुरू हो जाएगा। बराबर। तो देखो खुशी, बिहारी दादा ने क्या बोला कि एक्सरसाइज से सत्साधन से स्ट्रेंथ मिलती है। सो हाउ मच यू आर लूजिंग इन योर लाइफ? सोचा कभी? ये सोचो कि दिस इज यू आर लूजिंग लॉट ऑफ शक्ति है और यू आर लूजिंग इट, वेस्टिंग इट सॉर्ट ऑफ, यू नो। तो ये वेस्ट एनर्जी को कुछ काम में नहीं आएगा। अब ये आपका तो रिपोर्ट भेजा है कि नहीं भेजा? इंटेंट नहीं था आज भेजने का। ओके चलो अभी दीपक दादा विल कम टू यू एट द एंड। ओके दीपक दादा, एक दूसरा शब्द लेने का है कि अभी तीसरी कलम होमवर्क था अवर्णवाद अपराध अभिनय। तो और when you are doing that
कॉलम नंबर 1 और 2 भी ध्यान रखने का, किसी को दुख नहीं देते, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। और कॉलम 3 में अवर्णात अपराध कुछ किसी ने नोटिस किया किधर आपने इस किया था थर्ड कॉलम और कलम, और किधर आपने यूज किया था? मोनिका, आप बोलती मोनिका, बोलो। आज मैंने थर्ड कलम ब्रेक की थी मम्मी के साथ। ओके। ओ- मम्मी के साथ वापस जिन काम दिया था तो मैंने थोड़ा आर्ग्यूमेंट की थी, बाद में किया था। ओके। और किधर किधर पास हुआ था कलम में, थर्ड कलम में? थर्ड कलम में पास नहीं हुआ। कैसे हो सकता है? कुछ तो अच्छा होगा। खुशी के बारे, खुशी दीदी के बारे, करिश्मा दीदी के बारे, कुछ तो हाँ, कुछ तो उनके लिए आज मैंने अच्छा सोचा होगा। ओके खुशी। मैंने नहीं किया। श्रेया, हाँ, आज मैं थर्ड कॉलम मम्मी के साथ ब्रेक हो गई थी, उनको मम्मी। हेल्प चाहिए थी खाना बनाने में, तो और उस और किधर किधर ब्रेक नहीं हुई थी? अवर्णवार अपराध अभिनय, अभिनय किया नहीं बोला किया था सबको अभिनय, ऐसे बोलो ना। इफ यू किसी को अभिनय नहीं किया था तो राइट, किसी को अपराध नहीं किया था यानी मम्मी तो अपराध हो गया मम्मी का नहीं। ओके दक्ष। दादाजी ने किसके साथ थर्ड कलम ब्रेक नहीं करी थी। वेरी गुड, सब कुछ माना मम्मी का। हाँ, तो मम्मी ने एक बार थोड़ा सा दीदी का काम दिया था, वो भी कर दिया था। क्या बात है, वेरी गुड। ओके, तो बिहारी दादा जरा बोलिए कि तन कलम अगेन उन लोग को ध्यान रखेगा तो कितना फायदा होगा। बिहारी दादा वो थोड़ा बच्चों को बताइए। बोलो वो हाँ हाँ, तीसरी कलम कौन सी है? कौन बोलेगा? तीसरी कलम कौन सी है? वो चिनाई बोलो। हाँ जी। हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક સાધુ સાધ્વી के आचार्य नो अवनवाद अपराध अविनय न करने की परम शक्ति आपको। बराबर। तो जितने भी साधु साध्वी है, उपदेशक है, तो वो सब त्याग करके आत्मा की तलाश के लिए बाहर निकल जाते हैं। तो इसीलिए वो आत्मा को ही ढूंढने के लिए, आत्मा की ही प्राप्ति करने के लिए साधु बन जाते हैं। तो कभी भी वो साधु साध्वी उपदेशक आचार्य के प्रति कुछ भी गलत विचार आए तो तुरंत उसका प्रतिक्रमण करने का है। किसी के भी बारे में जिसको हम पहचानते नहीं है, जिसके बारे में कुछ जानते नहीं है, ऐसे बड़े बड़े जो पुरुष है, जो आत्मा की खोज के लिए निकले हैं, तो इनका कभी भी अपराध अविनय अवर्णवाद नहीं होना चाहिए। और उनके पास से उनके विनय करके हमको शक्ति प्राप्त होती है, उसका आशीर्वाद मिलते हैं। तो जब भी कहीं पर भी कोई साधु साध्वी उपदेशक किसी का भी सामना हो जाए तो विनय से उसका दर्शन करने का है और उनके पास से शक्ति मांगने की है कि आप जिस तरह
आत्मा की खोज में निकल पड़े हैं, और आत्मा क्या है वही जानने की सिर्फ आपको भावना है। तो ऐसी भावना हमारे भीतर भी खड़ी हो, ऐसी आप हमें शक्ति प्रदान करें। तो इस तरह से ये थर्ड कलम जो है उनका अपराध, अवर्णवाद, अविनय नहीं करने का है, लेकिन उसका दर्शन करके, उनका सानिध्य पाके हमको लाभ लेने का है। बराबर? हाँ, Yeah, okay, Deepak Dal. यही सच्चिदानंद, ये सभी कलमों का हेतु क्या है? मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, चाय बनाते हैं ना, तो उसमें वो छलनी यूज करते हैं हाँ, करते हैं कि नहीं करते? छलनी करते पता है हैं। ना? सीव सीव, हाँ, वो क्या बोलते हैं उसको आप? गरणी। हाँ, Charni, Gurni. आप क्या हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? छानिया, छानी, क्या Chania. छान Yeah, लेते you're हैं right. ना? Chania, yeah. छानिया बोलते हैं उसको। अगर छानिया यूज नहीं किया तो क्या होगा? एक बार है ना, वो छानने के बगैर किसी को चाय दे दो, क्या होगा वो देखो, क्योंकि वो ऊपर से नहीं देखेगा, वो तो सब अंदर सेटल हो जाता है ना। वो पीने जाएंगे ना तो वो सब आएगा, मुंह में पत्ती आएगी। फिर देखो कैसी मजा आती है। समझ में आया? हमारा जीवन भी ऐसा ही है। ये 9 कलमें जो हमें दी है, वो छानिया जैसे काम करती है। यानी वो हम ध्यान में रखते हैं, लक्ष्य में रखते हैं, तो जहाँ जहाँ जो जो व्यवहार हमारा होता है, तो हमें हमारी गलतियां समझ में आती है। हम ये नहीं करते हैं, कहते हैं कि आप गलतियां करते रहते हो। गलतियां होती है, और 9 कलम बोलने से, ये सब सत साधन करने से हमें हमारी गलतियां समझ में आती है। समझ में आया? हाँ, हाँ, और ये समझ आने पर हमें हमारी गलतियां समझ में आता है। ये रह गया, टाइम टेबल के मुताबिक वो रह गया, जो जो सब ऐसा आता है, उसका रिपोर्ट लिखने का मतलब क्या है? आपने उसको अच्छे से उसका निरीक्षण किया, अपना ऑब्जर्वेशन किया आपने अपना, समझे? और ऑब्जर्वेशन के बाद पता चला कि ये सब गलतियां हुई है, तो उसका प्रतिक्रमण करना है। हाँ, तो ये जो जो हर रोज की गलतियां जो हमें पता चलती है कि ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, ये रह गया, रिपोर्ट रह गया, सूर्य नमस्कार रह गया, जो जो कुछ रह गया हमने ही तय किया था, और हम वो रह जाता है, उसके पीछे हमारा प्रतिक्रमण लगता है। तो किया था, ये आज के समय में प्रतिक्रमण नहीं करने का वो बहुत बड़ा दोष है। क्योंकि प्रतिक्रमण हम अपनी मर्जी से करेंगे ना, मर्जी से ही तो करते हैं। हाँ, गलतियां अपनी मर्जी से करते हैं कि गलतियां हो जाती है। हो आप तो जाती तय है। करते कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है करके हम तय तो करते ही है ना। हाँ, यानी आपको करना है, जब आपने तय किया है तो आपको करना है, लेकिन होता नहीं है ना। तय किया, करना है, होता नहीं है, तो उसके पीछे उसका सॉल्यूशन क्या है? हाँ, सॉल्यूशन क्या है?
प्रतिक्रमण। समझ में आया? और प्रतिक्रमण जो रह जाता है, अभी सॉल्यूशन ही रह जाता है, तो वो बड़ा दोष नहीं हो गया, क्योंकि वो हमारे पर, हमारी मर्जी पर डिसाइड तय करता है, निर्भर करता है। समझ में आया? हाँ एग्जाम में आपने कुछ गलत लिख लिया और आपको समय मिला है पढ़ने का कि आपने क्या लिखा है, आपको पता चलता है कि ये गलतियां हो गई है। अगर वो गलतियों को आपने सुधारा नहीं तो वो मार्क्स कटेंगे कि नहीं उसका? गलतियों को सुधारा नहीं, आपने सुधारा नहीं तो उसका मार्क्स कटेंगे ना। हाँ और अगर आपने वो मिस्टेक्स को सुधार ली तो उसके मार्क्स मिल जाते हैं ना। हाँ तो मोनिका इतना सोचती क्या है? सबसे बड़ी है तो। समझ में आया? हाँ मुझे डरने का नहीं है, हाँ हम कुछ डराने नहीं आए, हम समझने आए हैं, समझाने आए हैं कि कैसे कैसे गलतियां होती रहती है, और उसका इलाज, उसका सॉल्यूशन प्रतिक्रमण है, और हम प्रतिक्रमण ही चूक जाते हैं। प्रतिक्रमण करने का कंटाला आता है नहीं, आलस आती है, कंटाला आता है। दक्ष, कंटाला आता है ना प्रतिक्रमण करने का? वैसे जल्दी बोलो ना। हाँ आता हाँ, है। लेकिन वो अब पेट खाली हो जाता है ना, तो भूख तो हाँ लगती है ना, हाँ तो हम तुरंत खा लेते हैं। तो ये हाँ गलतियां भी हमें, जैसे पेट खाली हो गया ना तो प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, ऐसा कर लेना है हमें। इसीलिए हाँ हमें ये भी तय करना जरूरी है कि हे दादा भगवान, बोलो हे दादा भगवान, हे दादा बोलो भगवान, हे दादा भगवान। हे दादा बात नहीं आया ना? भगवान, हाँ हे दादा भगवान। हे दादा आ- भगवान दिन भगवान भर, दिन दिन भर भर दिन भर दिन जो भर गलतियां होती है, जो जो गलतियां जो गलतियां होती है, जो गलतियां होती है, जो गलतियां होती है उन सभी गलतियों का उन सभी गलतियों का का अतिक्रमण करने की शक्ति दो। प्रतिक्रमण करने की शक्ति दो। शक्ति वो ऐसा नहीं बोल सकते आप? बोल सकता। जैसा जैसा तय करेंगे ना ऐसा होगा। और ये आज के समय की बड़ा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि प्रतिक्रमण ही होता नहीं है। आप ही बोलो, आपकी आज तक जितनी सब गलतियां हुई है, क्या उस सब का आपने प्रतिक्रमण किया है? रह जाता है ना। वो हाँ क्यों रह जाता है? क्योंकि इसके बारे में हमने तय किया ही नहीं है कि प्रतिक्रमण करना चाहिए, और ऊपर से कंटाला आता है, आलस आती है। सही है ना? हाँ तो वो ऐसा है ना, जो हम डिसाइड करते हैं ना, तय करते हैं, वो हो जाता है। लेकिन तय ही नहीं करते हैं तो वो कैसे होगा, वो मुझे बता। ये हम जो 3 प्रेयर्स बोलते हैं ना, डेली प्रेयर बोलते हैं, अ, फिर स्टडी की प्रेयर बोलते हैं, तीसरी कौन सी प्रेयर बोलते हैं? हे दादा भगवान हेल्थ प्रेयर बोलते हैं। जो जो सब प्रेयर्स बोलते हैं ना हम, तो हम डिसाइड करते हैं, और डिसाइड करने के बाद, तय करने के बाद, जो जो गलतियां होती है उसका हमें प्रतिक्रमण नहीं करना है। ये रिपोर्ट लेने का हेतु क्या है, लक्ष्य क्या है? कि हमारी गलती हम खुद अपने मुख से बोले कि ये गलतियां हो गई। और हाँ जब हम अपनी गलतियां मुख से बोलते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसको एक्नॉलेज किया बताया जाता है, एक्सेप्ट किया आपने, उसे आलोचना कहते हैं। और फिर उसकी माफी मांग लेनी है, और तय करना है कि मुझे ये नहीं करना है, दादा आप मुझे शक्ति दो। गलतियां हो जाना वो बड़ा दोष नहीं है, लेकिन प्रतिक्रमण नहीं करना वो बहुत बड़ा दोष है। ख्याल में आया? हाँ
आप प्रतिक्रमण करते जाएंगे ना तो एक दिन दादा भगवान हो जाएगी, क्योंकि तय तो करते हैं लेकिन प्रतिक्रमण चूक जाते हैं, यानी करेक्शन नहीं होता है, तो कैसे परिणाम आएगा? ख्याल में आया? हाँ आप गलतियां करते हैं ना, उसकी उसकी हमें बहुत परवाह नहीं है, लेकिन प्रतिक्रमण नहीं करते वो बहुत बड़ी बात है। ख्याल में आया? हाँ हाँ प्लीज रिजॉल्व प्रतिक्रमण करो, करते करते हम इंटेंट हमारे लक्ष्य में पहुंच जाते हैं। हाँ इंटेंट करो कि हमको करने का है, दैट इज इट। हाँ, देखो बिहारी आनंद जी क्या करते हैं, बताया? प्रतिक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बहुत है। इम्पोर्टेंट है। वो प्रतिक्रमण आपका हो गया ना, दादा ने क्या कहा, जो प्रतिक्रमण करता है ना वो भगवान हो जाता है, यानी उनके जैसा हो जाता है। समझ गए? समझ गए सब बच्चे लोग? ओके, तो प्लीज ये सोचो थोड़ो, अभी सत्संग के बाद 2 मिनट, ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ जरा सोचो। ओके, और ये अभी कॉलम नंबर 1 2 3 का अवेयरनेस किधर आप करते हैं नहीं करते हो, जरा ध्यान रखने का है। ओके, ठीक है? हाँ है मोनिका, क्यों हाँ सीरियस हो गए आप? नहीं बहुत तकलीफ है घर सीरियस में? होना ही चाहिए, नहीं सीरियस होना ही चाहिए। मुझे कल ओके से करना है। ओके, जय अरे सच्चिदानंद, कल मिलेंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। देखो हम इधर आते हैं इम्प्रूव के लिए। ओके, कोई डांट ही नहीं देता है आपको। ओके, जय सच्चिदानंद।